Welcome back, students, to the lecture number 8 of National Income and Related Aggregates. We are on the golden rules that suggest gross is equal to net plus depreciation, national product is domestic product plus NIFA, marginal market price is factor cost plus NIT, net indirect taxes. इसको हम और भी तीन तरीके से निकाल सकते हैं. नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इसे भी डीपी इज इक्वल टू नाइफा इज इक्वल टू, और इसे भी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनआईटी इज इक्वल टू. लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस. पेज नंबर 31. पेज नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 25. पेज 31. Question number 25. Calculate net indirect taxes. NIT compute करना है. You cannot compute NIT once you need to have the two parameters. That means either in gross or net form or national income or domestic income. Let's see what we have. GNP at MP. GNP at MP is equal to NDP at FC. NDP at FC. There are two variables given. You can put any to the left, any to the right. Answer would be same. Formula would be changed. जैसे मैंने बताया था, the first which is given, I'll put on the left. This is gross, this is net. Gross value of car is basically net value of car plus depreciation. National product is equal to domestic product. National product is equal to domestic product. NIFA will be added because national is big, gross is big. Market price is equal to factor cost. Market price is equal to factor cost. Market price is big, so NIT will be added. So we need to have the bigger term from the smaller one, so obviously we'll add the variable. So GNP at MP given as 7,000, NDP at FC is 6,200 plus depreciation 600 plus NIFA is minus 400. Minus 400 means factor paid to abroad is greater than factor earned from abroad plus NIT. Then you need to compute net indirect taxes. 7,000 is 6,200 plus 600 minus 400 plus NIT. 7,000 is 62 plus 6, 68 minus 4, 64 plus NIT. So NIT is technically 7,000 minus 6,400, which is rupee 600. Net indirect taxes are 600 positive. That means indirect taxes are greater than the subsidies. Question number 26. Question number 26. Calculate subsidies. हमें subsidies बोला गया निकालने के लिए. ऐसा subsidies का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दो चीजें गिवन होंगी और आप ध्यान देंगे वो गिवन है NNP at FC. NNP at FC from GDP at MP. NNP at FC from GDP at MP.
This is net, this is gross. Net is equal to gross minus depreciation. This is NP, this is DP. नाइफा को प्लस किया जाएगा, प्लस नाइफा. दिस इज एफसी, दिस इज एमपी. फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस से. फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, माइनस एनआईटी. So NNP at FC given in the question is 2000. GDP at MP given in the question is 2500. Depreciation given in the question is 450. NIFA directly given is 100. Minus NIT, net indirect taxes, bracket start. Indirect taxes minus subsidies, 200 minus subsidies. And you know better, minus is important if bracket is there, or bracket is important if minus is there. So please understand this. Let's solve it now. 2000 is equal to 2500 minus 450 plus 100 minus 200 plus subsidies. I have just opened the bracket. 2000 is equal to 2526 minus 650 plus subsidies. 1950 plus subsidies. That means इस कंट्री ने इस साल 50 करोड़ या 50 रुपीज बिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज दी है. फॉर दिस ईयर दिस कंट्री हैज गिवन द सब्सिडीज अमाउंटेड टू 50. Moving on, question number 27. Question number 27. Suppose the GDP of a country in a particular year was rupee 550 crores. Because statement question है तो मैं सारी values एक बार लिख लेता हूँ. Suppose GDP at MP of a country in a particular year is rupee 550 crores. Net factor income from abroad is 50 crores. NIFA is 50 crores. The value of indirect taxes minus subsidies is 75 crores. Indirect taxes minus subsidies means net. Net indirect taxes means indirect taxes minus subsidies is 75 crores. National income is 425 crores. Please underline national income. लिखिए NNP at FC. National income is NNP at FC. 425 crores. $425 crores. Calculate aggregate value of depreciation. You need to compute depreciation, or you may write depreciation say X. Put in the formula, get X, and that would be your answer. So the formula would be GDP at MP is equal to NNP at FC gross net plus depreciation, gross net plus depreciation, DP NP
DPNP plus minus NIFA, MPFC plus NIT. So GDP at MP is NNP at FC plus depreciation due to the gross minus NIFA due to domestic plus NIT due to market price. 550 is equal to 425 plus depreciation minus NIFA plus NIT. Let's solve it. 550 is equal to 500 plus depreciation minus 50. 550 is 450 plus depreciation. That suggests us the depreciation is 550 minus 450. Rupee 100 crores. इस साल इस कंट्री में 100 करोड़ की, इस साल इस कंट्री में 100 करोड़ की डेप्रिसिएशन लगी है फिक्स्ड एसेट्स पर. स्पीड अप कंप्लीटेड. Moving on, question number 61. क्वेश्चन नंबर 61. हमारे गोल्डन रूल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि ये कंसेप्ट्स को आप माइंड में बिठा लें. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा इस टॉपिक का, एंड उसके बाद विल स्टार्ट द मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम. देयर आर 3 मेथड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं. चलिए लेट्स प्रोसीड विद सर्टेन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट. क्वेश्चन नंबर 61. स्टेट ट्रू और फॉल्स गिविंग रीजन. ट्रू और फॉल्स विद रीजन. A, in closed economy domestic product is always equal to national product. क्लोज्ड इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एब्रॉड सेक्टर नहीं होता. अगर एब्रॉड सेक्टर नहीं होता तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नाइफा नहीं होती, और अगर नाइफा नहीं होती मींस नाइफा होता है 0, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल ही तो आएगा, क्योंकि गोल्डन रूल नंबर 2 डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट सेम है अगर नाइफा 0 है तो. और नाइफा कब 0 होती है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जब दोनों इक्वल हो जाएं. पर क्लोज्ड इकोनॉमी में तो हमेशा ही नाइफा 0 होती है. सो द आंसर इज ट्रू. 61 का ए पार्ट ट्रू. राइट डाउन true, comma, in closed economy hyphen true, comma, in closed economy hyphen there is absence of rest of the world sector. There is absence of rest of the word sector, ROW, rest of the word sector, full stop. Thus, comma, NIFA is equal to 0. Thus, comma, NIFA is equal to 0.
full stop. NIFI is net factor income earned from abroad is 0, full stop. Thus domestic product is equal to national product. Domestic product is equal to national product, full stop, full stop. Second, illegal activities are not included in national income as these are transfer payment. Illegal activities national income include नहीं होती, ट्रू, पर वो ट्रांसफर पेमेंट है, नो। इलीगल एक्टिविटीज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता है। अगर मैं कोई अपनी बुक्स अकाउंट्स में मेंटेन करूंगा जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जैसे कि स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, थेफ्ट, चोरी, मर्डर, इसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं ये चेक से तो दिए नहीं जा सकते, ये कैश में दिए जाते हैं, तो इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्योंकि इसे बुक्स में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो हम अपने ITR रिटर्न जब फाइल करते हैं उसमें शो नहीं करते। अगर हम ITR में शो नहीं करते तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास ये डेटा आता ही नहीं है, इसलिए वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर सर्विस की वजह से नहीं, रिकॉर्ड ना होने की वजह से इसे इंक्लूड नहीं करते। लिखिए फॉल्स, कॉमा, फॉल्स, कॉमा, illegal activities are not estimated, illegal activities are not estimated in the computation of national income, in computation of national income of a country, in computation of national income of a country, because of the non-availability of data with CSO, because of the non-availability of data with CSO, Central Statistical Organization। जी, अगर डेटा हो तो वो इंक्लूड कर लेंगे। जैसे आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि 10 लाख की चोरी का सामान पकड़ा गया, 2 लाख के मोबाइल फ़ोन चोरी के पकड़े गए, तो वो जो 10 लाख है उसका रिकॉर्ड आ गया, तो फिर जो म्यूचुअल बेनिफिट से चीज़ें होती हैं, दोनों तरफ से इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। दोनों तरफ से मतलब कि मुंबई से दिल्ली सामान भेजा जा रहा है विदाउट GST बिल के बगैर दिल्ली से मुंबई सामान भेजा जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और देखती है कि 50 लाख की टी-शर्ट्स हैं या 50 लाख के शूज़ हैं, तो दोनों पार्टीज़ को पता था इलीगल है, तो दोनों पार्टीज़ में से किसी को भी वो शूज़ नहीं मिलेंगे, वो शूज़ गवर्नमेंट के हो जाएंगे। प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी, CSO के पास रिकॉर्ड भी आ गया 50 लाख का, अब उसे नेशनल इनकम इंक्लूड कर देंगे, डबल। हाँ, अगर 50 लाख के चोरी का सामान जा रहा है तो अगर वो पकड़ा गया तो हमें उसको वापस करना पड़ेगा जहां से चोरी हुआ है, तो वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। ओल्ड एज पेंशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। द आंसर इज ट्रू। ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर पेमेंट है जो गवर्नमेंट पे करती है और ये ट्रांसफर इनकम है जिन लोगों को मिलती है। जो पर्सन बूढ़े हो जाते हैं और वो अपनी लिविंग नेसेसिटीज़ को पूरे नहीं कर पाते तो उसे ओल्ड एज पेंशन दी जाती है। इट इज़ नॉट रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में क्योंकि वो फैक्टर पेमेंट है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। दिस इज ओल्ड एज पेंशन, सो इट डज नॉट यील्ड any productive services and hence not included in the estimation of national income. So the answer is true. D.
imputed rent on self-occupied houses used for production will not be included in estimation of national income. सबसे पहले imputed rent क्या होता है? This is on opportunity basis. जैसे कि आपकी एक शॉप है, वहीं पर आप रह रहे हैं और आप ही की अपनी शॉप है, नीचे काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे आप रह रहे हैं, तो आप किसी को रेंट तो पे करते नहीं, बट लैंड यूज हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज देयर, लैंड इज देयर, सो इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कंप्यूट किया जाता है. जैसे कि अगर आप ये लैंड किसी को किराए पर दें, ये शॉप अगर आप किसी को किराए पर दें, तो आपको कितना रेंट रिसीव होगा, से 10,000, तो आप अपनी बुक्स में 10,000 का रेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं. दिस इज रेंट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. दिस इज कॉल्ड imputed rent. So the answer is false. Self-occupied houses for production purposes, रहने के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए. Self-occupied houses for production purposes are the factors of production, क्योंकि लैंड तो यूज हो रही है. Undoubtedly, rent is not paid in monetary terms. हम कैश में रेंट किसी को नहीं पे कर रहे, but rent should be measured on opportunity cost basis, and which is called self-imputed rent, and thus included while estimating in the national income of the country. So the statement, the answer is false. Moving on. Question number 68. Question number 68. Will the following be included in the domestic factor income of India? क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे? एक हम प्रॉपर लेक्चर भी डेडिकेट करेंगे बाद में, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. अभी के लिए क्या ये चीजें इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगी या नहीं, वी नीड टू एक्सप्लेन दिस. सबसे पहले देखना है कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, फिर देखना है कि प्रोडक्शन होनी चाहिए, तभी फैक्टर इनकम होगी. सो फर्स्ट वी नीड टू सी फैक्टर इनकम, मतलब कि प्रोडक्शन होनी चाहिए. और दूसरा फिर हमने देखना है कि पूछा है क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम, कौन सी इनकम पूछी है, डोमेस्टिक इनकम. तो हमने देखना है पैसे कहाँ कमाए गए हैं. अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए गए हैं तो आंसर इंक्लूड होगा. अगर डोमेस्टिक इनकम में कमाए गए हैं, इट विल बी इंक्लूडेड. फर्स्ट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय अ फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया. सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो हम वर्कर को पैसे दे रहे हैं, वर्कर को क्या देते हैं, सैलरी. यस. अब देखेंगे पैसे कहां कमाए हैं. फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी है. यस. सो द आंसर ऑफ बोथ द टर्म्स आर यस. सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया. राइट डाउन, राइट डाउन. पेपर में पूरी लाइन लिखनी है अभी के लिए. It will be a part of domestic factor income of India. It will be a part of domestic factor income of India, as it is a factor income earned as it is a factor income earned within the domestic territory of India. It is the factor income earned within the domestic territory of India. Number 2, profits earned by an Indian company located abroad. इंडिया की कंपनी है रिलायंस, अब्रॉड में लोकेटेड है, वहाँ पे उसकी ब्रांच होगी, हेडक्वार्टर तो इंडिया में होगा, तभी वो इंडियन कंपनी है. वहाँ से उसने प्रॉफिट्स कमाए. क्या प्रॉफिट एक फैक्टर इनकम है? यस, प्रॉफिट एक फैक्टर इनकम है.
कहां पैसे कमाए? इंडिया में नहीं, पैसे कमाए बाहर, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो देखना पैसे कहां कमाए हैं, पैसे बाहर कमाए हैं। द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। सो बेसिकली द आंसर इज नो। लिखिए, it will not be included in the domestic factor income of India. It will not be included in the domestic factor income of India as the factor income is earned outside the domestic territory of India. Factor income has been earned outside the domestic territory of India. Third, compensation of employees paid by American Embassy in India to resident Indians. इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल गई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी और वेरियस स्टाइपेंड। फैक्टर इनकम, यस, कहां पैसे कमाए? इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी में। प्रेफरेंस मिलेगी अमेरिकन एम्बेसी को। एम्बेसी और कंट्री में प्रेफरेंस एम्बेसी को मिलती है, एम्बेसी है अमेरिका की। सो द आंसर इज यस, द आंसर इज नो, द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। सो द नेट आंसर इज नो। लिखिए, the factor income has been earned, the factor income has been earned in American Embassy, which is outside the domestic territory of India, which is outside the domestic territory of India, full stop. Hence, it will not be the part of domestic factor income of India. Hence, comma, it will not be the part of domestic factor income of India. Fourth, profits earned by a company partly owned by residents and partly owned by non-resident located in India. एक कंपनी है, पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर में, कुछ शेयर इंडियंस का है, कुछ शेयर बाहर के लोगों का है, पर कंट्री इंडिया के अंदर है। जो हेडक्वार्टर है कंपनी का वो इंडिया में है। प्रॉफिट्स, द आंसर इज यस, प्रॉफिट्स, द आंसर इज यस। कहाँ कमाए? इंडिया में, द आंसर इज यस। हाँ, अगर नेशनल इनकम होता तो हम देखते किसने कमाए। नेशनल इनकम होता तो हम देखते पैसे किसने कमाए, तो यहां लिखा है पार्टली, तो जो शेयर इंडियंस ने कमाया होता वो इंडिया की नेशनल इनकम होता, जो शेयर नॉन रेजिडेंट इंडियन ने कमाया होता वो उस कंट्री का शेयर होता। अभी के लिए द आंसर इज यस, क्योंकि कंट्री इंडिया में है और वो एक फैक्टर इनकम है, प्रॉफिट्स। राइट डाउन आंसर नंबर 4। It will be the part of domestic income of India. It will be the part of domestic income of India as the factor income has been earned, as the factor income has been earned within the domestic territory of India, within the domestic territory of India. Fifth, purchase of machine by factory, purchase of machine by factory, factory ने मशीन खरीदी, included, it's a capital good, factory ने मशीन खरीदी, it's a capital good,
कैपिटल गुड इज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी. एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टिल द एंड ऑफ दिस मशीन इंक्लूडेड. राइट डाउन. Purchase of machine by factory is an example of capital good. Purchase of machine by factory is an example of capital good, that is final good, that is final good. Full stop. Hence, full stop. Hence, comma, is a part of domestic product of India. Hence, is a part of domestic product of India. Full stop. वैसे तो आंसर कंप्लीट हो गया, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं आगे एक लाइन और लिख पा रहा हूं. ईयर आफ्टर ईयर till the end of machine, year after year, comma, till the end life of machine, till the end life of machine, depreciation will be charged on it. Depreciation will be चार्ज्ड ऑन इट. इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू बाय अ पर्सनल कार. कार खरीदी, उस पर इंटरेस्ट दिया. क्या इंटरेस्ट एक फैक्टर इनकम है? यस, बट प्रोडक्शन नहीं हो रही. देखिए, पर्सनल कार है. मैंने घर के लिए कार खरीदी, उस पर ब्याज दिया, नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा. मैंने कार प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज की है, तो नेशनल इनकम इंक्लूड होगा. जैसे ओला के लिए कार खरीदी है, उबर के लिए कार खरीदी है, तो उस पर जो ब्याज पे होगा वो इंक्लूड होगा. बैंक को इंटरेस्ट दिया, वो भी देखना पड़ेगा पर्सनल यूज है कि प्रोडक्शन यूज है. यहां पे पर्सनल कार है. पर्सनल कार प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, वो एक ट्रांसफर इनकम है. जो इंटरेस्ट है वो एक ट्रांसफर इनकम आनी जाएगी. नॉट इंक्लूडेड. इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्चा करने के बाद जो आप घर लेके जाते हो, प्रॉफिट्स, उसमें से पे करते हो. मैंने कार खरीदी अपने लिए, तो मैं कमर्स विला से नहीं, अपने प्रॉफिट्स में से खरीदूंगा, और प्रॉफिट्स पहले ही नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुके हैं. सो डोंट गेट इनटू दैट मच डीप. It's a consumption purpose, not included. Write down. Sixth, interest paid on loan taken to buy a personal car. It will not be included in the domestic income of India. It will not be included in the domestic income of India as it is for consumption purpose, as it is for consumption purpose, and there is no equivalent, there is no production of goods and services in an economy. There is no production of goods and services in an economy. Full stop. Full stop. Next, question number 12. Question number 12. पेज 28 पे आएंगे आप. पेज 28 पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 12.
क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम कब हो सकती है? सी, नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस नाइफा। नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस नाइफा, तो नाइफा अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो ये बड़ी अमाउंट ही आएगी, दिस विल बी द बिगर अमाउंट ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज इसमें ऐड करनी है। बट क्वेश्चन में बोला है कि ये छोटा चाहिए, तो ये छोटा कब होगा? ये छोटा तब होगा जब नाइफा नेगेटिव हो जाएगा। सो इफ दिस इज 1000 एंड दिस इज -100, सो इट इज 900, सो नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन में पूछा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। किन सर्कमस्टांसेस में नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से छोटा होता है? जब नाइफा नेगेटिव होता है। लिखिए, राइट डाउन, नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम, national income will be, national income will be less than domestic income when NIFA will be negative, when NIFA will be negative, that is factor income paid to abroad, factor income paid to abroad is greater than factor income received from abroad, is greater than the factor income received from abroad. Full stop. Second, NNP at MP is less than NNP at FC. B part से पहले एक बार लिख लीजिए. It is important to note that it is important to note that comma ये लिख लीजिए, national income is domestic income plus NIFA, national income is domestic income plus NIFA, write down this. B NNP at MP is less than NNP at FC. NNP at MP is NNP at FC. This is net, this is net, this is net, this is net. There is no role for depreciation. Depreciation का कोई काम नहीं है. This is NP, this is NP. There is no role for NIFA. NIFA का कोई काम नहीं है. This is MP, this is FC. NIT will be added. क्वेश्चन में बोला है NNP at MP is less than NNP at FC. NNP at MP छोटा होगा, NNP at FC बड़ा होगा. ये कब हो सकता है? सेम, जब NIT नेगेटिव होगा. और NIT नेगेटिव कब होगा? बिकॉज NIT इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. जब सब्सिडीज IT से बड़ा होगा, जब सब्सिडीज IT से बड़ा होगा तो NIT नेगेटिव होगा. उस केस में मार्केट प्राइस छोटा होगा, फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा. मेरी फीस 1000 रुपये है और गवर्नमेंट ने मुझे 100 रुपये की सब्सिडी दे दी, तो मैं आपसे 900 रुपये चार्ज करूंगा. बिकॉज टैक्स देता तो 1100, सब्सिडी मिल गई तो 900. सो मार्केट प्राइस इज 900, फैक्टर कॉस्ट इज 1000 व्हेन सब्सिडीज आर ग्रेटर. राइट डाउन आंसर नंबर बी. NNP at MP is less than NNP at FC. NNP at MP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसे ऐसे कहते हैं
net national product at market price. NNP at MP will be less than NNP at FC, will be less than NNP at FC when NIT is negative, when NIT is negative, when NIT is negative. It is possible when subsidies are greater than indirect taxes, when subsidies are greater than indirect taxes. Full stop. It is important to note that ये नोट डाउन कर लीजिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये नोट डाउन कीजिए. NNP at MP is NNP at FC plus NIT. प्लीज नोट डाउन दिस, इसे नोट डाउन कीजिए. कूल. हमने आज किया कौन सी चीज़ें कहाँ इंक्लूड होती हैं कहाँ नहीं. कल का लेक्चर हम स्पेशली इसी पर डेडिकेट करेंगे. आपको रूल्स बता देंगे कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है कौन सी नहीं करनी है और क्या रीजंस होते हैं उन चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 8. In lecture number 9 we'll see what should be included and what should not be included. Bye bye, take care, namaste.